نظم نمبر 8 سیتا۔ اس نظم کو شفیق فاطمہ شورا نے لکھا ہے۔ پہلی بات، اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق عطا کیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حقوق، حق کی جمع حقوق۔ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے انہیں حاصل نہیں تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عورت کے ساتھ ہر زمانے میں ظلم و زیادتی ہوتی رہی۔ مرد نے اسے برابر کی کبھی حیثیت نہیں دی، اسے ہمیشہ کمتر سمجھا اور اس کے حقوق پامال کیے۔ مگر اسلام نے عورت کو معاشرے میں برابر کا مقام دیا۔ اسلام نے مرد و عورت کے حقوق و فرائض متعین کیے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر حیثیت میں ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اسلام میں مرد کے مقابلے عورت کا ادب و احترام زیادہ ہے۔ غیر محرم پر پہلی نظر پڑ جانے کے بعد دوسری نظر ڈالنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیٹیوں کی بہتر طریقے سے پرورش کرنے والے کو اسلام نے جنت کا حقدار قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال، ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ مینس، علامہ یعنی نہایت دانا اور فاضل مرد۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دنیا عورت ہی کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ہندو مذہب کی مشہور کتاب رامائن، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح کلام پاک قرآن شریف مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، اسی طرح رامائن ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے۔ ہندو مذہب کی مشہور کتاب رامائن میں سیتا کا کردار ایک پاک باز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاک باز یعنی پاکیزہ، سچا، سچی، صاف دل، ایک پاک باز بیوی کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ ذیل کی نظم میں سیتا کے کردار پر ایک نئے زاویے سے یعنی نئے نظریے سے، نئے انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ شفیق فاطمہ شورا نے سیتا جی کے کردار پر نئے زاویے سے روشنی ڈالی ہے۔ شیرا نے اسے تانیسی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، تانیسی یعنی نسوانی، عورتوں کا تانیسی نظریے کی روشنی میں، یعنی نسوانی نظریے کی نسوانی انداز نظر سے، عورتوں کی نظر سے اس پر روشنی، تانیسی نظریے کی روشنی میں دیکھا اور ایک عورت کے جذبات کی عمدہ عکاسی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، عکاسی یعنی تصویر کھینچی، عکاسی، عمدہ عکاسی کی ہے۔ تانیسی نظریے سے مراد، ڈیئر اسٹوڈنٹس، تانیسی نظریہ یعنی عورتوں کا نظریہ، نسوانی نظریہ۔ تانیسی نظریے سے مراد ہے عورتوں کے تمام مسائل کو عورتوں کے تصورات و خیالات کے مطابق دیکھنا، سمجھنا اور ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ جان پہچان۔ شفیق فاطمہ شورا 17 مئی 1930 کو ناگپور میں پیدا ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناگپور ریاست مہاراشٹر کا بڑا شہر ہے۔ ناگپور کا شمار ریاست مہاراشٹر کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور یہ شہر سنتروں کے باغات کے لیے معروف ہے۔
वहीं शफीक फ़ातिमा शोरा पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। बीए का इम्तिहान, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और एमए का इम्तिहान, डियर स्टूडेंट्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी, एमए का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया और मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में तदरीस, डियर स्टूडेंट्स, तदरीस के फ़राइज़, तदरीस यानी तालीम, पढ़ाई, तदरीस यानी दर्स देना, तालीम देना, टीचिंग। तदरीस की जमा है तदरीसात, तदरीस की जमा है तदरीसात। हैदराबाद में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। शोरा ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी नज़मों के मंजूम तर्जुमे भी किए। डियर स्टूडेंट्स, मंजूम के माने कौन बोलता? मंजूम यानी नज़्म करना, नज़्म में किया गया, अशार में लाया गया, नज़्म में किया हुआ तर्जुमा, मंजूम तर्जुमा यानी नज़्म में किया हुआ तर्जुमा। वो बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा हैं। उनकी बेशतर, डियर स्टूडेंट्स, बेशतर यानी अक्सर, ज़्यादातर, बेशतर नज़मों का मरकज़ी ख़याल अनोखा और उसलूब मुनफरिद है। डियर स्टूडेंट्स, उसलूब यानी तरीका, तर्ज, रविश। उसलूब की जमा है असालीब। डियर स्टूडेंट्स, शोरा की नज़मों में इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़यात के हवाले भी मिलते हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने के तहज़ीबी और सियासी मसाइल को भी अपनी नज़मों में पुरअसर अंदाज में पेश किया है। आफ़ाक़े नौ और गिलाए सफ़ूरा, डियर स्टूडेंट्स, गिला यानी शिकवा, शिकायत, उनके शेरी मजमुए हैं। सिलसिला मुकालमात, डियर स्टूडेंट्स, सिलसिला मुकालमात, मुकालमात जमा है मुकालमे की। मुकालमा यानी गुफ्तगू, ज़ुबानी सवाल व जवाब, हम कलामी, नाटक, ड्रामा। मुकालमे की जमा है मुकालमात। सिलसिला मुकालमात के नाम से शोरा का कुल्लियात, डियर स्टूडेंट्स, कुल्लियात मीन्स एक ही शख्स की मंजूमात या तसनीफ़ात का मजमुआ। और दीवान यानी, डियर स्टूडेंट्स, दीवान शायर के कलाम का मजमुआ दीवान कहलाता है। 13 अगस्त 2012 को उनका इंतकाल हुआ। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। इस नज़्म में शायरा शफीक फ़ातिमा शोरा ने राजा रामचंद्र जी की बीवी सीता जी के अजीम और बुलंद किरदार की दास्तान पेश की है। शायरा सीता जी की अज़मत बयान करते हुए कहती हैं कि हिंदुस्तान में सीता जी का इतना अदब व एहतराम किया जाता है कि हिंदू सुबह शाम उनका नाम लेते रहते हैं। तेरी खाके पा,
डियर स्टूडेंट्स, खाक पा यानी पैर की धूल, पैरों की धूल। तेरी खाक पा हिंद का राज अजमत, राज अजमत यानी अजमत का राज। तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। उनकी खाक पा हिंद की अजमत का राज है। शायरा के तसव्वुरात व ख्यालात में सीता जी का मुकाम निहायत ही बुलंद है। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। उन्होंने जब सीता जी की पुरदर्द कहानी सुनी तो वो थर्रा गई, उनके जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए और उनके दिल पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि उनके दिल की धड़कन निहायत ही तेज हो गई। वो पैहम सफर यानी लगातार सफर, मुतवातिर सफर। वो हवादिस के तूफान, हवादिस हादिसे की जमा हवादिस। वो पैरों में छाले, वो हस्ती निगाहें। बनवास के दौरान सीता जी की जिंदगी का बड़ा जमाना सफर की तकालीफ में गुजरा। पैरों में छाले होते हुए भी मुस्कुराती रहीं। कभी दिल की गुर्बत, बेवतनी मुसाफिरत। कभी दिल की गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सरदाहें। डियर स्टूडेंट्स, गरीबुल वतनी का शदीद एहसास था मगर दिल को बहलाती रहीं। रही साल साल तो ज्यादा पैमा रास्ता चलने वाला। साला साल रास्ता चलती रही, साला साल सब मुसाफिरत में रही, सफर करती रही इधर से उधर। ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। डियर स्टूडेंट्स, रियाजत यानी सख्त इबादत। ये धुन थी कि एक दिन ये मुसाफिरत, ये बेवतनी की राहें, ये सख्त राहें, ये सख्त इबादत की राहें, ये इम्तिहान की राहें एक दिन ख़त्म हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इंसान को अगर किसी चीज़ की धुन है, जैसा किसी ने क्या खूब फरमाया, संगरेज़ों की चुभन का हमें एहसास नहीं, संगरेज़ों की चुभन का हमें एहसास नहीं। हम तो मंजिल के मनारों पर नज़र रखते हैं। गर जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती, गर जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती। जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, और आजमाइशें बाकी थी। अभी सामने और भी इम्तिहान थे, सामने और बहुत से इम्तिहान नजर आ रहे थे। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी। डियर स्टूडेंट्स, असीरी यानी कैद, असीरी यानी कैद खाना। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, कैद खाना भी। और वो राक्षस का कैद खाना बहुत दूर तुझसे तेरे पासबा थे, और उसके पासबा उससे बहुत दूर थे। तेरी पाक फितरत मगर एक सफर थी, और तेरी पाक फितरत ढाल का काम कर रही। तेरे सामने राक्षस नातवा थे, और तेरे सामने राक्षस नातवा थे। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीता जी अपने शौहर रामचंद्र जी के साथ बनवास की सौबतें बर्दाश्त करती रहीं, और हर इम्तिहान में कामयाबी के साथ गुजरती रहीं। उसी दौरान लंका के राजा रावण ने सीता जी को अगवा करके उन्हें कैद में डाल दिया। उसकी कैद में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन सीता जी की पाक फितरत ने ढाल का काम अंजाम दिया। उनकी पाक दामनी के सामने रावण बहुत कमजोर साबित हुआ। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसला मन सच्चे जियाले। डियर स्टूडेंट्स, जरी यानी निडर, बहादुर, शेर दिल, हौसला मन
हौसला रखने वाले, सच्चे जियाले, सच्चे लोग। डियर स्टूडेंट्स, उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ। जब रावण ने सीता जी का अगवा कर लिया, सीता जी को अगवा करके कैद खाने में डाल दिया, तो कुछ जवां उठे जो निडर, बहादुर, शेर दिल थे, हौसलामंद थे और सच्चे थे। वो उठे, हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के। ऐवान यानी महल, मकान। सल्तनत को हिला डाला उन्होंने, रावण की सल्तनत पे हमला करके उसे हिला डाला, उसे शिकस्त दे दी। तेरे पासबां थे। डियर स्टूडेंट्स, पासबां, पासबां यानी निगरान, निगेबान, रखवाले। पासबान, तेरे पासबां थे बड़ी आन वाले, बड़ी आन वाले, बड़ी इज्जत आबरू वाले। तेरे पासबां थे, तेरे निगेबानी करने वाले बहुत आन वाले थे। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐलान कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। सीता जी की वापसी इस बात का ऐलान कर रही थी कि अंधेरों से उजाले नहीं मिटते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उधर सीता जी को घर पर न पाकर रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण बहुत परेशान हो गए। जब रावण ने उन्हें अगवा कर लिया था, कैद में डाल दिया था, तो सीता जी को घर पर ना पाकर रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण बहुत परेशान हो गए। रामचंद्र जी ने अपने साथियों के साथ रावण पर हमला कर दिया, उसकी सल्तनत पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी और सीता जी को उसके चुंगल से आजाद कराया। सहे जो सितम बन गए सब फसाने। सीता जी की ने जो सितम, जो जुल्म और सितम बर्दाश्त किया, उसके फसाने बन गए। तलाफी का अब आ रहा था ज़माना और उसकी तलाफी का ज़माना आ रहा था। हुई आह, लेकिन ये कैसी तलाफी, लेकिन ये कैसी तलाफी। दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना, दोबारा सीता जी को जंगलों में जाना पड़ा। सलेब, डियर स्टूडेंट, सलेब यानी मुसीबत बर्दाश्त करना। सलेब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। डियर स्टूडेंट्स, वनवास के 14 साल मुकम्मल करके जब वो अपने घर लौटी तो यहाँ भी उनके लिए आजमाइश इंतजार कर रही थी। अजब है ये असरार वस्ल वो जुदाई। डियर स्टूडेंट्स, असरार, असरार, डियर स्टूडेंट, असरार सिर की जमा है। सिर यानी भेद, पोशीदा बातें। अजब है ये असरार वस्ल वो जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था। डियर स्टूडेंट्स, अजब है ये असरार वस्ल वो जुदाई, ये मुलाकात और जुदाई का भेद भी अजीब व गरीब है कि मंजिल पाकर भी उन्हें मंजिल नहीं मिली। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी, ये कैसा जुल्म व सितम था सुबूत अपने इफ़्फ़त का देने को आई। ये कैसा जुल्म व सितम था कि पाकीज़ा खातून को, पाकीज़ा देवी को भी अपने पाकीज़गी का सबूत देना पड़ा। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो शोलों में से शोले की तरह गुजर गई। वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई और इस तरह वो बिजली की तरह ज़मीन में समा गई। डियर स्टूडेंट्स, सीता जी को अपनी अस्मत और पाक दामनी के सबूत में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। ये बहुत बड़ा जुल्म था, लेकिन सीता जी खामोशी से बर्दाश्त करती रहीं। वो आग से गुजरी मगर दुआ मांगी तो ज़मीन फट गई और वो उसमें समा गई। इस तरह उस इफ़्फ़त की देवी ने अपने पाकीज़गी का वाज़े सबूत पेश किया। डियर स्टूडेंट्स, खुलासा गौर से समाअत फरमाइए और समझने की कोशिश कीजिए। खुलासा, शायरा ने इस नज़्म में सीता की अज़मत की कहानी सुनाई। हिंदुस्तान में सीता का इतना एहतराम किया जाता है कि हिंदू सुबह शाम उनका नाम लेते रहते हैं।
ہندوستان کی عظمت سیتا ہی کے دم سے ہے۔ جب شاعرہ نے سیتا کے حالات سنے تو وہ گھبرا گئیں۔ انہیں پتہ چلا کہ سیتا کی زندگی کا بڑا زمانہ سفر کی تکلیفوں میں گزرا۔ انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا، طرح طرح کی آزمائشوں سے وہ گزری۔ لنکا کے راجا راون نے ان کا اغوا کر کے انہیں قید کر دیا، مگر سیتا کی ہمت نہ ڈگمگائی۔ انہیں راون کی قید سے آزاد کرنے کے لیے ان کے شوہر رام چندر جی نے ایک فوج کے ساتھ راون پر حملہ کر دیا اور اسے شکست دی۔ سیتا اس قید سے چھوٹ کر اور 14 برس جنگل میں گزار کر اپنے گھر آئیں، مگر یہاں بھی ان کے لیے ایک آزمائش تیار تھی۔ یہاں ایک عام آدمی کی ضد پر ان کی عزت اور پاکیزگی کا ثبوت مانگا گیا۔ انہیں آگ سے زندہ گزرنا پڑا۔ ایسی حالت میں سیتا نے دعا کی، چنانچہ زمین پھٹ گئی اور سیتا اس میں سما گئی۔ پیہم متواتر پے در پے لگاتار حوادث حادثے کی جمع واقعہ سانحہ صدمہ غربت بے وطنی مسافرت زیادہ پیما راستہ چلنے والا ریاضت سخت عبادت اسیری قید سپر ڈھال سپر آڑ سپر مددگار راکشس دیو شیطان مراد لنکا کا راجا راون جری نڈر جری بہادر جری شیر دل ایوان محل تلافی اچھا بدلہ سلیب اٹھانا مصیبت برداشت کرنا اسرار سر کی جمع سر یعنی بھید پوشیدہ باتیں عفت کی دیوی پاکیزگی کی دیوی مراد سیتا۔